নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আপনারা রয়েছেন ইচ্ছেগুরু অনুষ্ঠানে অনিন্দিতার সঙ্গে। আর আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো অবশ্যই আপনার সন্তানটির ক্যারিয়ার নিয়ে এবং সঠিক ক্যারিয়ার নির্বাচন। অভিভাবক প্লাস আপনার যে বাচ্চাটি, যে আপনার যে সন্তান আগামী দিনে কি পড়বে কি পড়বে না সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সময়ে। কেননা কিছুদিন আগে আপনারা জানেন আমাদের মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত 2017 মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। তারপরেই যেটা থেকে যায় সেটা হচ্ছে আমার বাচ্চা কি নিয়ে পড়বে। অনেকেই রয়েছেন যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে বিলং করেন, তাদের ক্ষেত্রে হয়তো 11-12 পড়ানোর, উচ্চ মাধ্যমিক পড়ানোর সেই খরচাটা তারা বহন করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে তারা চায় যে বাচ্চা আমার কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে খুব তাড়াতাড়ি কোথাও একটা জব পেয়ে যাক। সেই নানা কিছু চিন্তা মাথায় আসতেই থাকে। তো আজকে আমরা কথা বলবো কেরিয়ার গঠনে সত্যা গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশন, NCR দিল্লি। আর এই বিষয় নিয়ে যারা আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন, আমাদের সঙ্গে আমার সাথেই যিনি রয়েছেন, আসুন ওনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। পরিচয় করিয়ে দেবার আগে যে কথাটা অত্যন্ত জরুরি, সবসময় আপনাদের বলে থাকি, সেটা হচ্ছে যে কোনো ধরনের প্রশ্ন আপনার মনে উঠছে অবশ্যই ডায়াল করবেন, আমাদের জানান কি সমস্যা আপনার রয়েছে। সেটা আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে যদি নাও মেলে, কেরিয়ার গঠনে যদি আমরা কোথাও বা আপনার সন্তানটিকে সাহায্য করতে পারি, আমাদের ভালো লাগবে। তাহলে চলুন পরিচয় করিয়ে দিই। আমার সঙ্গে প্রথমেই রয়েছে অভিজিৎ রয়, রিজনাল অফিস কোঅর্ডিনেটর। নমস্কার। তারপরেই রয়েছে মিস্টার অমরিক সিং, নমস্কার, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সত্যা গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনের। তারপরে রয়েছে লেকচারার ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার উমেশ চন্দ্রা, নমস্তে। যিনি কথা বলবেন অমরিক সিং জি, তো উনি আপনাদের হিন্দিতেই বলবেন। উনার কথাটা আমি আপনাদের বাংলায় তর্জমা করে বুঝিয়ে বলবো। আমি বাংলায় বলার চেষ্টা করবো উনি যা বলতে চেয়েছেন। তারপরেও যদি আপনাদের কিছু প্রশ্ন থেকে থাকে, কোথাও যদি মনে হয় আমাদের কথাগুলো আপনাদের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে, অবশ্যই যে কোনো মনে সন্দেহ না রেখে ডায়াল করুন আমাদের ফোন নম্বরে। স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে আমাদের ফোন লাইন খোলা রয়েছে, সরাসরি কথা বলুন ওনাদের সঙ্গে। नमस्ते जी, नमस्कार। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी स्वागतम, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। पहले जो बात है, बहुत दिनों से आप इस एडुकेशन के लाइन के साथ आप जुड़े हुए हो, बहुत सारे एक्सपीरियंस है आपके, तो पहले वो सब सुनना चाहेंगे। ऐसा कुछ, चाहे आपके कुछ बातों से हमारे भी जो दर्शक है, जो बच्चे देख रहे हैं, उनका कुछ फायदा हो जाए। जी जी, मैं क्योंकि तकरीबन एजुकेशन की लाइन से मेरे को जुड़े हुए 20 साल हो गए और 10-11 साल से एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन से भी मैं एसोसिएट हूँ यहाँ से सत्या ग्रुप से। तो बहुत सारी चीजें कई बार मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ, कई बार बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और वो किसी न किसी कशमकश में होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इस स्टैंडर्ड के बाद हम क्या किया जाए, कौन सा कोर्स किया जाए, क्योंकि आज बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं और बच्चों को अब ये नहीं पता कि कौन सा कोर्स उनके हिसाब से ठीक है, कौन सा कोर्स उन्हें ज्वाइन करना चाहिए जो जिससे उनका जिंदगी में एक करियर उनका बन जाए, किसी एक मंजिल पे वो बच्चे पहुंच जाए। जनरली जो मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व किया, अगर मैंने 4 बच्चों से मैंने बात की तो अगर एक ने बोला कि मैं ये कोर्स करना चाहता हूं तो उसके 2-3 साथी हो गए मैं भी यही करूंगा। अच्छा, अब बाकी 2-3 साथियों को नहीं पता कि वो कोर्स उनके लिए फायदेमंद होगा कि नहीं होगा, क्या वो उसमें कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, मगर क्यों कर रहे हैं मैं उनसे पूछता हूँ, क्यों आप क्यों करना चाहते हैं, कहते हैं मेरे दोस्त ने किया, वो अच्छा है तो मैं करता हूँ। तो एक ये जो चीज मैं जब देखता हूँ तो इससे क्या होता है, आखिर में जब चल के 4 साल बाद 5 साल बाद वो कोर्स की ड्यूरेशन खत्म हो जाती है और जब वो 2-3-4 बच्चे जो अपने पसंद से नहीं कर रहे होते, अपने शौक से नहीं कर रहे, किसी और के कहने पे कर रहे होते हैं,
तो उनको रियलाइज होता कि अब तो टाइम तो निकल गया, अब वो टाइम वापस तो आ नहीं सकता, तो ऐसे में फिर वो बच्चे पछताते हैं। तो मुझे इसलिए मैं इस चीज में आता हूँ, कैरियर गाइडेंस को लेकर, कैरियर काउंसलिंग को लेकर मैं जगह जगह जाता हूँ। मेरे को अच्छा लगता है मैं बच्चों को गाइड करूँ, जो अपने जिंदगी का तजुर्बा मेरे पास है, ताकि अभी से अगर मैं बच्चों को एक सही डायरेक्शन दे सकूं, अगर बच्चों की जो गाड़ी है एक सही ट्रैक पर चल पड़े तो वो एक डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को गाइड करना। तो यही सोच के आज भी मैं यहाँ पर आपके बीच में हूँ कि अगर मेरे कुछ नॉलेज से, मेरे कुछ एक्सपीरियंस से अगर हमारे कुछ बच्चों को फायदा हो जाए और हमारे जो बच्चों की जो एक करियर ओरिएंटेड जो सोच है, एक ऑब्जेक्टिव है, उस पर बच्चे पहुंच जाए, तो मेरे को लगेगा मैं एक कुछ काम कर पाऊंगा समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। সবচাইতে যে সমস্যাটা হয়, কেননা কি আমাদের চতুর্দিকে এতগুলো ইনস্টিটিউশন রয়েছে, এত কোর্সেস রয়েছে, এবার আমার বাচ্চাটির জন্য, আমার সন্তানের জন্য কোন কোর্সটা জরুরি হবে বা ফলপ্রসূ হবে ভবিষ্যতের জন্য, কেরিয়ার গঠনে তাকে সাকসেস দেবে, সাফল্য দেবে, সেটাই কিন্তু নির্বাচন করাটা এই মুহূর্তে অত্যন্ত একটা টাফ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সেটা ওনার কাছ থেকে জানুন আপনারাও, শুনুন, আমাদের সঙ্গে থাকুন BB24 এর, আর অবশ্যই ডায়াল করতে পারেন, আপনার সমস্যার কথাটি আমাদের জানাতে পারেন। কোথাও যদি তাদের নম্বর নিয়ে সমস্যা থেকে থাকে, সেই নম্বরে সে কি কি লাইনে পড়তে আগ্রহী সে কথাটিও আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেন। जो मैं बोल रही थी कि सबसे पजल्ड वाला टाइम यानी कि आफ्टर 10th एंड 12th मैं क्या करूं। बिल्कुल इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं, पेपर पे फ्लैरिश हो रहे हैं, टीवी पे दिखा रहे हैं, फिर मैं कौन से इंस्टीट्यूशन अपने बच्चे के लिए चूज करूं। एक वो बात सताती है, मेरा बच्चा वहां पे सिक्योर होगा कि नहीं। दूसरी जो है, इतने सारे कोर्सेज भी आ गए हैं, बिल्कुल किस कोर्स के बाद कौन सा ऑप्शन आपके पास खुला है वो भी सबको मालूम नहीं। बिल्कुल यही दो चीजें मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अब जैसे आपने शुरू की बात, तो मैं आपसे बात 10th के स्टैंडर्ड से बात शुरू करता हूँ कि 10th के बाद, क्योंकि आजकल कंपटीशन का बहुत जमाना, तो हर साल बच्चे के करियर में मैटर करता है। द मोमेंट 10th इज ओवर, तो वहां से डायरेक्शंस शुरू हो जाती हैं, करियर लाइंस शुरू हो जाती हैं अलग अलग चीजों के लिए। 10th के बाद भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो बच्चा कर सकता है, उसके साथ साथ अपनी एजुकेशन को भी कंप्लीट कर सकता है। फिर अब कुछ ऐसी चीजें नई निकल कर आ रहे हैं, पॉलिटेक्निक्स निकल कर आ रहे हैं, डिप्लोमास निकल कर आ रहे हैं। उन डिप्लोमास के लिए उसका जो इक्विवेलेंट टू 12th है, उससे फायदा क्या होता है कि बच्चों का एक बेस, एक करियर का जो जिस भी डायरेक्शन में उस बच्चे ने जाना है, उसमें उस बच्चे का एक बेस बनना शुरू हो जाता है। तो 11th एंड 12th जो जनरली एक जनरल सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ पर रहते हैं 11th एंड 12th में, वेयर एज फॉरेन कंट्रीज में अगर मैं बात करूं, उनके एजुकेशन सिस्टम से मैं कंपेयर करूं, तो वहां पर बेस से ही 10th के बाद ही बच्चों को एक प्रोफेशनल, एक टेक्निकल एजुकेशन शुरू कर देते हैं, ताकि बच्चे करियर ओरिएंटेड जॉब को, करियर ओरिएंटेड एक प्रोफेशनल अपने करियर को बना सकें। वो इंडिया में भी हमने आस्ते आस्ते उन चीजों को फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो 10th के बाद इंडिया में भी बड़े अच्छे स्कोप निकल कर आए हैं। खास तौर पे मैं जो एक बड़ा अच्छी चीज जो निकल कर आई है वो है पॉलिटेक्निक, डिप्लोमास, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के जो इंस्टीट्यूशंस ने जो स्टार्ट किए, जो बोर्ड के कोर्सेज हैं, चाहे वो डिप्लोमा मैकेनिकल के अंदर है, सिविल के अंदर है, या कंप्यूटर साइंस के अंदर है, तो ये जो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो आगे चलकर बच्चा जब हायर एजुकेशन के लिए जाता है आफ्टर 12th, तो इस हायर एजुकेशन के लिए वो बड़ा अच्छा सपोर्ट करते हैं। एक तो वो चीज हो गई। इसके अलावा अगर बच्चा डिप्लोमा उसने किया है, तो डिप्लोमा करने के बाद वो जॉब में जा सकता है। जॉब के साथ साथ आजकल बड़े सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो जॉब के साथ साथ 12th की इंजीनियरिंग की डिग्री भी प्रोवाइड करते हैं। तो वो फैमिलीज खास तौर पे फोन लाइन पे একজন দর্শক বন্ধু চলে এসেছেন। হ্যালো, নমস্কার। Namaskar, PSR from Shamoli Bazar, retired research. I have two questions to that fellow, অবশ্যই। Every year যখন 12 এবং ফল হয় তখন অনেকগুলা ইনস্টিটিউশন আসে। I want to ask him whether he has got his infrastructure, whether he has taken permission from government of Tripura. কারণ I know যে এখান থেকে গিয়া পরে ওইখানে 2 নম্বরই অনেক কিছু থাকে না। This nursing এর ব্যাপারে I know যে ask him যে what is his infrastructure. You give him the line. ঠিক আছে, আপনি আমাদের অনুষ্ঠান শুনতে থাকুন। I want to ask
আপনি আমাদের অনুষ্ঠান শুনতে থাকুন। এই যে अभी जो जिन्होंने फोन किया फिर उन्होंने वो बोल रहे थे कि ऐसा भी कई बार होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं यहाँ पे प्रोग्राम, उनके बहुत से अच्छे अच्छे बातें सुनाते हैं, फिर बच्चे जब वहां पे जाते वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती, उनको ठग लिया जाता है, कहीं पे वो बच्चे यानी कि वंचित रह जाते हैं उन सब बातों से। बिल्कुल बिल्कुल होता है। तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? जी, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। मैं तो ये चीज शेयर करना चाहूंगा, ये AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है और तकरीबन 10 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है और 20 एकर्स में ये हमारा जो कॉलेज हो दैट इज स्प्रेड इन 20 एकर्स ऑफ एरिया। इसके अलावा यहाँ पर जो अब इंफ्रा की मैं बात करता हूँ, हमारे पास हर तरह की लैब्स वहां पर मौजूद है, क्योंकि अब तकरीबन हमारे पास 6 बैचेस हमारे यहाँ से कॉलेज से पास आउट होकर निकल चुके हैं। जनरली जितने भी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको अप्रूवल तभी मिल पाती है जब AICTE की इंस्पेक्शन होती है। AICTE की इंस्पेक्शन जो होती है उसमें सारे चीजों को इंस्पेक्ट किया जाता है, लैब्स को इंस्पेक्ट किया जाता है, नंबर ऑफ फैकल्टीज को इंस्पेक्ट किया जाता है और उसके अलावा किस तरह की हम एजुकेशन दे रहे हैं उसको इंस्पेक्ट किया जाता है। इन सारी चीजों को इवेल्युएट करने के बाद उनको AICTE की अप्रूवल मिलती है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा एक अहम क्वेश्चन आपने पूछा कि यहाँ से वो आते हैं, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मैंने बहुत सारा कॉलेज के बारे में ये परेशानी मैंने हर जगह मैंने सुनी है पेरेंट्स की। इसके लिए मैंने एक सोल्यूशन शुरू से निकाला अपने इंस्टीट्यूशन को लेकर। हमने क्या किया शुरू से लेकर, जब भी हमने ये परेशानियां माँ बाप की देखी, पेरेंट्स की देखी, हमने कभी भी इस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दी है। हमारी किसी टीम ने इस तरह के नहीं किया कि होटल्स में आए, होटल्स में आए, काउंसलिंग करके बच्चों को एडमिशन किया, लंबी चौड़ी मीठी मीठी बातें की और चले गए। हमने हर जगह जाके अपना खुद का ऑफिस सेट किया, वहां पर रीजनल ऑफिस एक सेट किया, वहां पर एक रीजनल फेस को हमने वहां पर अपॉइंटमेंट दिया वहां पर। जैसे हमारे यहाँ पर भी मिस्टर अभिजीत इज वर्किंग फॉर अस ओवर देयर। सिमिलरली कश्मीर में आज हमारा अपना ऑफिस है, बिहार में हमारा अपना ऑफिस है, मणिपुर में हमारा अपना ऑफिस है, जहां पर भी हर स्टेट में हमारे अपने ऑफिस हमने रखे। उसके पीछे कुछ रीजन थे ताकि जब बच्चे यहां से वहां पर पहुंचे तो बच्चों को, जब बच्चे तो वहां पर पढ़ रहे हैं, अब इतनी दूर से जब पेरेंट्स है, वो कश्मीर के पेरेंट्स हैं, चाहे वो त्रिपुरा के पेरेंट्स हैं, उनके लिए वहां पर इंस्टीट्यूट में जाना पॉसिबल नहीं है। अब कोई भी रिपोर्ट, कोई भी बात होगी तो पेरेंट्स बच्चे जो सबसे पहले रिपोर्ट करेंगे अपने पेरेंट्स को। तो अगर हम कुछ गलत करेंगे तो इन दैट केस पेरेंट्स हैव द ऑप्शन टू विजिट आवर रीजनल ऑफिस। जो सबसे बड़ी चीज जो मिसिंग होती है बड़े सारे कॉलेजेस के केसेस में, वो यहां पर नहीं है। इसीलिए क्योंकि वी हैव कॉन्फिडेंस कि जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या जो मैं बात यहां पर कर रहा हूं वो बात में जेन्युइन है, उस बात में 100% श्योरिटी है, वहां पर बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इसीलिए हमने अपना रीजनल ऑफिस खोला। रीजनल ऑफिस का फायदा क्या है कि वो 12 महीने ऑफिस यहां पर खुला रहेगा, 12 महीने ऑफिस खुला रहेगा। यहाँ पर पेरेंट्स को काउंसलिंग लेनी है, पेरेंट्स को एडमिशंस करवाना है, पेरेंट्स को फीस डिपॉजिट करनी है। इसके अलावा अगर पेरेंट्स को अपने बच्चों की अटेंडेंस चेक करनी है तो हमारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर रहता है जो मेरे सारे रीजनल ऑफिस में रहता है। पेरेंट्स आते हैं तो अपने बच्चे की अटेंडेंस के बारे में पूछते हैं, तो हमारे जो रीजनल इंचार्ज हैं अटेंडेंस खोल के बच्चे को दिखाते हैं कि आपका बच्चा इतने दिन गया, चाहे वो वीकली है चाहे वो मंथ में एक बार आए, तो अपने बच्चों की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स कि एक रीजनल ऑफिस सेट करने से फेथ बनता है, पेरेंट्स का विश्वास बैठता है, कॉन्फिडेंस बैठता है। इसके अलावा हम और काम क्या करते हैं, एक सेमेस्टर जो 6 महीने का होता है, हर सेमेस्टर में हम एक दिन पेरेंट्स मीट करते हैं जो हमारे रीजनल ऑफिस में करते हैं, क्योंकि इतने सारे पेरेंट्स का कॉलेज पहुंचना, दिल्ली पहुंचना इज नॉट पॉसिबल। अब क्या होता है जब यहाँ पर पेरेंट्स मीट करते हैं, एक तो सारे पेरेंट्स एक दूसरे को जान जाते हैं कि किनके बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, दूसरा कोई भी फीडबैक होते हैं, कोई भी चीज होती है वो शेयर कर देते हैं। ये हिम्मत वही लोग करेंगे जो जेन्युइन होंगे। तो ये जो हमने इस तरह की जो अरेंजमेंट इसीलिए किया है क्योंकि इतने साथ हम कॉलेज रन कर रहे हैं और हमारा जो प्रोस्पेक्ट, जो हमारी सोच है वो डिफरेंट है कि हमें इस लॉन्ग टर्म बिजनेस आगे भी इसको हमें रन कर रहे हैं और बच्चे हमें आगे भी कंटिन्यूएशन में चाहिए। ये शॉर्ट टर्म या वन टाइम नहीं है कि इस बार बच्चे आएंगे, या कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो एक बार आप बेचेंगे और दोबारा ये बिल्कुल ही यानी कि शर्मनाक बात है कि मेरे इंस्टीट्यूशन को लेके मुझे इतने सफाई गाने पड़ते हैं। बिल्कुल, ये बहुत शर्मनाक बात है और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, ठीक बात, बच्चों के लाइफ को लेके जो भी ये सब करते रहते, वो जो गेम, उनका जो पैसे का जो खेल है, उनके लिए जो जेन्युइन है उनको भी भुगतना पड़ता है।
बिल्कुल। आपने जो सुना ही हुआ एक कहावत जो हिंदी में कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो जहां पर इस तरह के लोग, जो इस तरह की सोच वाले लोग होंगे, तो उनकी वजह से जो लोग जेन्युइनली एजुकेशन में कुछ काम करना चाहते हैं या जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स उनके ऊपर क्वेश्चन उठना लाजिमी है। तो मैं ये मेरे लिए मतलब कोई पहली बार इस तरह क्वेश्चन नहीं है, तो यह कोई नया क्वेश्चन नहीं है। मैं जहां भी जाता हूं हर जगह दूसरी स्टेट्स में इस तरह क्वेश्चन आते ही हैं सामने। तो पेरेंट्स का एक कंसर्न जायज है। हाँ, कंसर्न जायज है। और एक बात भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो कि आप इतने साल इससे जुड़े हुए हैं, वो है कि पेरेंट्स को कौन सी चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वो ऐसे लोगों के चुंगल में ना फंसे। बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने भी। सबसे पहली चीज तो जो है वो जो सबसे बड़ा बेंचमार्क, सबसे बड़ा क्राइटेरिया वो ये है कि कॉलेज की अप्रूवल। कॉलेज की अप्रूवल चेक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने अभी आपसे बातचीत में शेयर किया था सबसे पहले कि एआईसीटी की अप्रूवल चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एआईसीटी की अप्रूवल तभी मिलती है जब एआईसीटी इंस्पेक्ट कर लेता है सारे कॉलेज को, सारे इंफ्रा को, क्योंकि उनकी 7 या 8 मेंबर्स की टीम वहां पर आती है कॉलेज को विजिट करने के लिए। तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया तो यह है कि एआईसीटी की अप्रूवल्स या और भी जो अप्रूवल्स है, यूनिवर्सिटी की अप्रूवल्स है, वो चेक करनी जरूरी है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर, क्योंकि दूसरी स्टेट से बच्चा, जब इस स्टेट से बच्चा जा रहा है, यहां पर क्या कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव है, यहां पर कोई ऐसा लोकल फेस है जो नुमाइंदगी करता हो यहाँ के सारे स्टूडेंट्स की, यहाँ के सारे पेरेंट्स की, कि क्या उन्होंने किसी ने कॉलेज विजिट किया, क्या वो लोग आए हैं कॉलेज देखने के लिए, या जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट इस कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, क्या उनसे मिलना भी, मैं समझता हूं कि उनसे मिलना भी जरूरी है। हाँ, मुझे ये एक बात बहुत যে आपके बच्चे আপনার বাচ্চাকে যেখানেই আপনি পাঠাতে চান, যে কলেজে আপনি পাঠাতে চান, অবশ্যই সেখানকার লোকালি গার্জিয়ানদের সঙ্গে কথা বলে যারা বাচ্চারা পড়ছে ওখানে তাদের ফিডব্যাকটা নেওয়া মনে হয় আমার সেটা অত্যন্ত লাভজনক একটা দিক, একটা পজিটিভ দিক। আপনি জানতে পারবেন ঘরে বসে সেই ফিডব্যাকটা নিয়ে যে আপনার বাচ্চা যেখানে আপনি পাঠাতে চাইছেন তার আশেপাশে যারা আগে থেকেই সেখানে পড়ছে তাদের থেকে ফিডব্যাক নিলে আমার মনে হয় সেই ব্যাপারটা নিয়ে আপনি অনেকটাই স্পষ্ট ধারণা পাবেন, এবং সেই ব্যাপারটা নিয়ে আপনি যে চিন্তাটা করছেন অবশ্যই সেটা কি বলবো, সেটা জায়েজ একটা চিন্তা। মানে একদম যে আমি এত টাকা দিয়ে, मेरा तो पैसा तो जा रहा है, पैसा भी जा रहा है, एनर्जी भी जा रहा है, टाइम भी मैं इसके अंडर फिर दूसरी एक चिंता आ जाती है बच्चे की सिक्योरिटी को लेकर। तो आपके वहाँ पे कैंपस सिक्योरिटी वगैरह वो सब के बारे में? बिल्कुल। मैं जो कैंपस और सिक्योरिटी बात, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कॉलेज आता है हमारा, तो एक तो आजकल क्योंकि ये नॉर्मल चीजें हो गई हैं, और जो एआईसीटी की मैं जो बात कर रहा था कि बहुत सारी गाइडलाइंस हमारे पास एआईसीटी की तरफ से और यूनिवर्सिटी की तरफ से आती है। उन गाइडलाइंस के अंदर सबसे पहली चीज तो ये है कि हर पूरा कैंपस जो है सीसीटीवी सर्विलेंस के अंदर रहता है। सीसीटीवी सर्विलेंस तो एक वन ऑफ द सोर्स है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का कि क्या चल रहा है, कहां पर क्या नहीं हो रहा है, मगर इससे एक बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हर एक इंसान के ऊपर रहता है। मैं कहता हूं, अगर किसी छोटा सा लॉजिक देकर बात करता हूं कि अगर किसी दुकान में भी सीसीटीवी कैमरा लगा होता है तो जो शॉप करने के लिए जाता है, वहां पर शॉपिंग के लिए जाता है, वो भी बड़ा केयरफुल हो जाता है, और जो वहां पर जो सेल कर रहे होते हैं वो भी बड़ा केयरफुल हो जाता है। आई एम अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। सो दिस सेंटेंस, दिस टैगलाइन इन इटसेल्फ इज वेरी साइकोलॉजिकल इम्पैक्टफुल। तो उससे सिमिलरली ऐसे वहां पर जब हमारे सीसीटीवी कैमरा में सारी जगह लगे हुए हैं तो सारे बच्चे, सब बच्चों पर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है कि अगर कुछ गलत कुछ होगा तो हम उसकी निगरानी में, अगर बाई चांस कहीं से बाहर से कुछ गलत होता है तो वो भी साइकोलॉजिकली उन पर भी इम्पैक्ट आता है कि दे आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। एक मोड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस एरिया में हम हैं दिल्ली एनसीआर के, दैट इज कंपैरेटिवली वेरी पीसफुल एरिया। अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पर कॉलेज में सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट रहता है, सिक्योरिटी गनमैन्स वहां गेट के ऊपर रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर रहते हैं, हॉस्टल में वार्डन्स रहते हैं, हॉस्टल वार्डन्स के साथ साथ हमारे अपने फैकल्टी मेंबर्स, सो दे हैव रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स ओवर देयर। तो एक पूरा एक सिक्योरिटी का एटमॉस्फेयर तो रहता ही है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज मैं जो कहना चाहूंगा, जो उस इंस्टीट्यूशन में जो हमारी है, वी हैव अ फैमिली काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर देयर, जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ, हर स्टूडेंट्स के साथ एक कोऑर्डिनेटर वहां पर रहते हैं। लाइक उमेश इज ओवर हियर विद मी, सो उमेश इज कोऑर्डिनेटर फॉर ऑल आवर प्रिपर स्टूडेंट्स। तो हर स्टेट के लिए हमने एक कोऑर्डिनेटर हमने डिप्यूट किए हुए हैं, एक रीजनल फेस हमने डिप्यूट किया हुआ है, ताकि बच्चे खुलकर अपना कोई भी कंसर्न इनके साथ रखें, उमेश के साथ वहां पर कॉलेज में रखें, बिकॉज इज अ कोऑर्डिनेटर ओवर देयर, स्टेइंग इन हॉस्टल ओवर देयर विद दीज स्टूडेंट्स। देन
अगर कई बार कोई बच्चे कई बार कोई थोड़ा सा शाइनेस महसूस करते हैं, हेजिटेशन महसूस करते हैं, तो दे कैन स्पीक टू अभिजीत ऑल्सो बिकॉज इज द रीजनल फेस ओवर हियर। तो ऐसे करके हमने सारे अरेंजमेंट्स जो रखे हैं, बच्चों को हेजिटेशन हो, खोल के बात कर लें, 2 फेसेस हमने वहां पर रखे। सिक्योरिटी के लिए हमने बकायदा कैमरेज वहां पर लगाकर रखे, सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर रखे, फैकल्टी मेंबर्स वहां पर रखे। तो सिक्योरिटी की वहां पर, और दिल्ली एनसीआर है तो दिल्ली एनसीआर में इस तरह की कोई खतरे वाली परेशानी वाली बात नहीं है, बिकॉज प्लेंटी ऑफ कॉलेजेस आर देयर, तो उसमें कोई ऐसी और इसके बाद जो जानना चाहेंगे कि 10th स्टैंडर्ड के बाद आपके पढ़ाई का सिस्टम और क्या क्या आप ऑफर करते हैं, और यानी कि 12th के बाद। जी, मैं शुरू में हम इसी मुद्दे पे बात कर रहे थे, तो जहां से फिर कैंपस के एरियाज वगैरह की तरफ डाइवर्ट हो गए। तो 10th के बाद बच्चों के लिए पॉलिटेक्निक के कोर्सेज हैं, जो मैं समझता हूं कि बड़े यूजफुल कोर्सेज हैं, क्योंकि आगे चल के ये पॉलिटेक्निक के जो कोर्सेज हैं, चाहे वो डिप्लोमा मैकेनिकल के अंदर है, हमारे पास डिप्लोमा मैकेनिकल भी है, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग भी है, और भी डिप्लोमा के कोर्सेज हैं। ये वो डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो बच्चों को आगे चल के करियर के लिए बेस बनाने में उनकी हेल्प करते हैं। वो बच्चे, वो पेरेंट्स, वो फैमिलीज जो कई बार देखो हिंदुस्तान है, हर तरह की फैमिली है, कुछ मिडिल क्लास लोग भी हैं हमारे भाई, कुछ लोअर मिडिल क्लास भी हैं जो चाहते हैं कि बच्चे हमारे जल्दी से जल्दी जॉब के ऊपर लग जाएं। तो ऐसे बच्चों के लिए डिप्लोमा जो है कोर्सेज बड़े यूजफुल साबित होते हैं। 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स होता है 10th के बाद, तो वो डिप्लोमा करने के बाद दे इजिली गेट दी जॉब, और दिल्ली एनसीआर है तो वहां पर जॉब की प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है जो 10th के बाद बच्चे डिप्लोमा के कोर्सेज करके जॉब कर सकते हैं। आगे भी करियर है उनके पास, जॉब के साथ साथ फिर आगे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर सकते हैं साइड बाय साइड, ताकि डिप्लोमा के साथ इंजीनियरिंग कर लेंगे तो उनके पास 2 डिग्रियां हो जाएंगी उनके पास। तो ये डिप्लोमा फिर इंजीनियरिंग की डिग्री। और 12th के बाद 12th के बाद बच्चों के पास इंजीनियरिंग में बड़े सारे स्कोप्स निकल आते हैं। हालांकि कोर्सेज बड़े सारे हैं, बट मैं जिस तरह से इंजीनियरिंग की आने वाले सालों में जो मैं डिमांड देख रहा हूँ, जो आने वाले सालों में जो डिमांड देख रहा हूँ, तो उस डिमांड को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को 12th के बाद जो नॉन मेडिकल है, खासतौर पर मेडिकल वालों की तो एक लाइन बड़ी क्लियर है कि उन्हें मेडिकल की लाइन में जाना है, पर नॉन मेडिकल में बड़े सारे रास्ते खुल जाते हैं। नॉन मेडिकल में मैनेजमेंट की लाइन भी खुल जाती है। वो बच्चे जो मैनेजमेंट की लाइन में प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं। वो उनको चाहना चाहिए बीबीए और एमबीए करना चाहिए, तो पहले बीबीए कर लिया जाए 3 साल का, उसके बाद 2 साल की एमबीए कर लिया जाए, और फिर वो पीएचडी वगैरह भी किया जा सकता है उसमें। तो इस तरह की एक ट्रैक वो उस तरफ जाता है। एक ट्रैक जाता है हमारा इंजीनियरिंग की तरफ जाता है। इंजीनियरिंग में जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं, इंजीनियरिंग में प्लेंटी ऑफ ब्रांचेस आते हैं। आजकल कंप्यूटर्स का बहुत जमाना चल रहा है, गेमिंग के सॉफ्टवेयर आ गए, एनिमेशन वीडियोज आ गए, अच्छा इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स आ गई, बड़ी बड़ी हमारी इस तरह के शॉपिंग पोर्टल्स वगैरह चल गए हैं। आजकल आप देखें डिजिटलाइजेशन चल रहा है, हमारे पीएम साहब डिजिटलाइजेशन की बड़ी फेवर में और होना भी चाहिए, तो उसमें कंप्यूटर का बड़ा अच्छा रोल है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की ब्रांच में जा सकते हैं बच्चे। मैकेनिकल में आजकल बड़ी डेवलपमेंट चल रही है, मैकेनिकल में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और एक बात जो है बच्चे के मार्क्स, यानी कि क्वालिफिकेशन, वो एडमिशन लेने के लिए उनका मार्क्स कितना होना चाहिए जी। और इसके साथ जुड़ी हुई जो एक बात है, मेरा बच्चा शायद इतना भी मेरिटोरियस नहीं है कि वो इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ सके, वो उसको अवेल कर सके, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि मेरे पास पैसा है, बच्चे कम नंबर भी मिल जाए तो चाहे मैं तो किसी को बोल सकूंगा कि मेरा बच्चा तो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। वैसे भी केसेस है, वो नहीं देखना चाहते, वो सोचना भी नहीं चाहते कि मेरा बच्चा इसमें अगर भर्ती हो भी जाए तो उसका प्रोस्पेक्ट क्या है, वो अच्छा होगा कि नहीं होगा। कई बार पास आउट के बाद भी ऐसा देखा गया है कि बच्चा कुछ नहीं कर सकता उस प्रोफेशन पे, उसका दिल ही नहीं लगता। तब मैच्योरिटी के बाद उनसे जब पूछा जाता है तब वो बोलते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं, क्या पढ़ो, पापा मम्मी ने भर्ती कर दिया तो मैंने तो बिल्कुल ठीक। यही मैंने सबसे पहले बोला था कि जनरली जब मैं बच्चों से मिलता हूँ या परेशानी जब बाद में पता चलती है तो कैसे एडमिशन लिया था, क्यों लिया था, मेरे दोस्तों ने बोला था या मेरे पेरेंट्स मुझे ये बनते हुए देखना चाह रहे थे, तो उनकी दिल की इच्छा थी कि मैं इंजीनियरिंग करूं, तो मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। यहाँ पर काउंसलिंग का और काउंसलर का रोल आता है यहाँ पर। तो इसलिए मैं जो बार बार कहता हूं कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सही समय पर हम सही दवाई बच्चे को दें, सही समय पर सही राय बच्चे को दें, ताकि बच्चे का करियर सही डायरेक्शन में जाए। जब हम एडमिशन करने की बात करते हैं तो वैसे तो
अब गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है AICTE की तरफ से जो क्राइटेरिया है उसमें 50% मार्क्स उन्होंने मिनिमम बच्चों का रखा है कि AICTE की तरफ से इंजीनियरिंग के लिए 50% मार्क्स बच्चों को चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़े सारे ट्रेड्स ऐसे हैं जहां पर मार्क्स काम नहीं करते हैं, बच्चे का जो ब्रेन जो नॉलेज है वो काम करता है कि ब्रेन उस एरिया में कैसे चल सकता है। अगर प्रोग्रामिंग की बात करूंगा तो हो सकता है मुझे बड़ा अच्छे माइंड का क्योंकि जो 10th के बाद जो बच्चे होते हैं वो टोटली इमेच्योर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको पता ही नहीं है कि क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, क्या सिविल इंजीनियरिंग पे पढ़ाया जाता है, क्या कंप्यूटर साइंस पे, उनको ये सब मालूम ही नहीं है। जी आप ठीक है। तो इन्हीं चीजों को गाइड करते हैं जब हम काउंसलिंग सेशंस रखते हैं। आज हमने जो रीजनल ऑफिस रखा, क्योंकि बच्चों के लिए दिल्ली पहुंच के काउंसलिंग लेना इज वेरी वेरी टफ, तो मैं खुद यहां पर बीच में आता रहता हूं ताकि बच्चों को प्रॉपर गाइड करते रहे। फिर जो मेरी अपनी टीम है, मैंने अपनी टीम को ट्रेन किया, गाइड किया कि आप जब बच्चे से बात करें, बच्चे का इंटरेस्ट समझें, क्या बच्चा करना चाहता है, क्या बच्चा बन सकता है। कुछ एक आध टेस्ट हम लेते हैं, कंडक्ट कराते हैं ताकि बच्चों को सही डायरेक्शन दे सके, सही इंजीनियरिंग की ब्रांच के बारे में भी गाइड कर सके। दैट्स ऑल्सो अगेन इशू कि बच्चे इसमें के लिए काबिल हो सकता है, इसमें बच्चा जा सकता है, मगर गलती से वो दूसरी ब्रांच को ले लेता है और फिर बाद में बताते हो मैं तो आई एम नॉट मेंट फॉर दिस ब्रांच। तो ऐसे बड़े सारे इश्यूज आते हैं। तो ये सारे हम अपने टेस्ट के थ्रू हम कंडक्ट करते हैं, पर यहाँ पर जब थोड़ा बहुत हम टेस्ट करवाते हैं बच्चों का, उससे हम बच्चों को एक राय देते हैं, एडवाइस देते हैं कि आप इंजीनियरिंग की इस ट्रैक में जाइए। सिमिलरली जो आप 10th की बात आपने की, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 10th में बच्चे बिल्कुल एक रॉ मटेरियल की तरह होते हैं, कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि हमें इंजीनियरिंग में जाएंगे तो डिप्लोमा करेंगे तो डिप्लोमा में होगा क्या, डिप्लोमा करने के बाद बनेंगे क्या, बनेंगे उसके बाद आगे क्या जाएंगे। तो ये सारी चीजों का आंसर हम इसमें काउंसलिंग में भी देते हैं कि भाई आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब करेंगे तो आप मैकेनिकल के बाद आप डिजाइनिंग में भी जा सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकते हैं, आप ऑपरेशंस में भी जाते हैं। ऐसे एन नंबर ऑफ लाइंस आर ओपन इन मैकेनिकल साइड। सिमिलरली सिविल के अंदर भी बड़ी सारी लाइंस खुलती हैं। तो एवरी ब्रांच हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, एवरी ब्रांच हैज इट्स ओन फ्लेवर, ओन टेस्ट, और उसके बाद बच्चे का इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट के साथ जोड़ते हुए बच्चों को फिर हम गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं कि आप इस लाइन के अंदर जाइए। तो इस तरह के ये हम 1-to-1 काउंसलिंग के अंदर, ये जो मैं सिस्टम शेयर कर रहा हूं, हम 1-to-1 काउंसलिंग के अंदर जब आप बच्चे, जब भी पेरेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों के साथ वहां पर आते हैं हमारे रीजनल काउंसलिंग सेंटर के साथ, तो वहां पर हमारी टीम आपको गाइड करेगी, और मैं भी अगर यहां पर हूंगा तो मैं भी आपको गाइड करूंगा कि आपके बच्चे के लिए कौन सी लाइन ज्यादा बढ़िया रहेगी। तो नंबर के बारे में, यानी कि नंबर जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि 50% मार्क्स जो AICTE की सेट गाइडलाइंस हैं कि 50% मार्क्स मिनिमम बच्चे को चाहिए इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए ऑल अक्रॉस इंडिया, कहीं पर भी। और एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है जी। एक वैसे तो JEE का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो उसी के थ्रू एडमिशन होते हैं सभी कॉलेजेस में। हम जो जिस टेस्ट की बात कर रहे हैं वो टेस्ट इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए नहीं है। वो टेस्ट सिर्फ इसलिए कि बच्चे की साइकोलॉजी को समझते हुए, बच्चे की नॉलेज को समझते हुए एक एडवाइस करना कि आपके लिए कौन सी ब्रांच ठीक है, क्या आप इंजीनियरिंग के लिए ठीक भी हैं कि नहीं है, क्या आप इंजीनियरिंग में कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। वो टेस्ट इस तरह की हेल्प करने के लिए है, वो टेस्ट इंजीनियरिंग में एडमिशन देने के लिए नहीं है। तो उससे बच्चों को गाइड मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है। देखिए मैं जो कहा, हम नहीं चाहते कि अननेसेसरी बच्चा 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ता रहे और किसी मुकाम पर ना पहुंचे, क्योंकि पैसा तो देखो माँ बाप बड़ी मुश्किल से पैसा कमा के लाते हैं। इट इज नॉट इजी थिंग, बड़ी हार्ड अर्न मनी होती है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पैसा वापस आ सकता है, दोबारा कमाया जा सकता है, मगर जो 4 साल का जो पीरियड है वो वापस नहीं आ सकता। तो किसी भी माँ बाप के, वी आर ऑल्सो पेरेंट्स, तो किसी भी माँ बाप के पैसे खराब ना हो, इसलिए उसके बच्चे को पहली बार में ही सही बताया जाए कि कर सकता है कि नहीं कर सकता। क्योंकि जो हमारी रिलेशनशिप है उन पेरेंट्स के साथ, हमारा जो ऑब्जेक्टिव और जो पेरेंट्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है। एक पेरेंट्स भी ये चाहता है कि उनका बेटा कुछ बन जाए, और एक टीचर वो भी ये चाहता है कि मेरा स्टूडेंट कुछ बन जाए। और एक बात है, वो मुझे बहुत खटक रही है कि मिडिल मैन एक होता है। जी, वो मिडिल से पैसे लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी वजह से लोगों का जो विश्वास है, यानी कि रिस्पेक्ट है, वो सभी एक ही को एक ही तोलने पे मजबूर कर देता है। यही चीज को मैं जो आपको कह रहा हूँ, 10 साल के एक्सपीरियंस में हमने ये चीजें सीखी है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द मिडल मैन, क्योंकि मिडल मैन का अपना इंटरेस्ट एक रहता है, मिडल मैन का अपना इंटरेस्ट है। और दूसरी चीज, मिडल मैन को जब मिडल मैन, एक आदमी ने 4 तरह की चीजें रखी हुई है, उसको भी नहीं पता होगा कि कौन सी चीज कहां पर ठीक है कि नहीं फायदा, उसको अपनी मनी से फायदा होता है। इसी चीज को अबॉलिश करने के लिए हमने अपना ऑफिस खुद का यहां पर खोला, ताकि पेरेंट्स के मन में एक फेथ, एक विश्वास रहे कि ये हमारे कॉलेज का ऑफिस है और ये कोई मिडलमैन का ऑफिस नहीं है। दूसरा,
मिडल मैन के थ्रू जाने से हमें नुकसान क्या रहता है, मिडल मैन आज है कल नहीं होगा। दोज आर लाइक द नाइट फायर्स, तो वो एक बड़ा नुकसान, बड़ा रिस्क पेरेंट्स के साथ रहता है। इन्हीं सारी चीजों को हमने खत्म करने के लिए, एबॉलिश करने के लिए अपना ऑफिस खोला, ताकि पेरेंट्स के अंदर विश्वास रहे कि जो गाइड करने वाला है वो कॉलेज का अपना एम्प्लॉय है जो गाइड कर रहा है, और जो 12 महीने ऑफिस वहां पर खुला रहेगा। ऑन टॉप ऑफ इट सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो एक लोकल फेस है, ये एक बड़ा फायदा रहता है। इसमें विश्वास कहीं पे भी ऐसा भी होता है कि बच्चे बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बाप माँ इतने नहीं होते कि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते कि उनको पढ़ा सके। मैम, एक रिकॉग्निशन की मैं जब बात करता हूँ या मैं एक ट्रस्ट की जब बात करता हूँ, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब हमें सोसाइटी को इन रिटर्न भी कुछ देना चाहिए। अगर आपको ऊपर वाले ने किसी लायक बनाया है, तो मैं समझता हूँ कि कई बार हमें सोसाइटी को रिटर्न जरूर करना चाहिए। मैं सारे पेरेंट्स से शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर, इट्स माय प्लेजर ऑल्सो बाय शेयरिंग दिस, कि 4 साल से हमने एक स्कीम स्टार्ट की हुई है। उसको बेटियों के लिए हमने वो स्टार्ट की थी, हमारी बेटी हमारी शान, उसका नाम हमने ये रखा था, हमारी बेटी हमारी शान। उस स्कीम के अंदर हमें पूरे हिंदुस्तान से हम 100 बेटियों को, पूरे हिंदुस्तान से हम 100 बेटियों को टेक्निकल एजुकेशन फ्री देते हैं। अच्छा। ये वो बेटियां हैं जो बेटियां पढ़ने में तो बहुत अच्छी हैं, पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियली दे आर वीक, तो उनका एक क्राइटेरिया होता है। हमने हर स्टेट को 10-10 सीटें दी हैं, हर स्टेट को 10-10 सीटें दी हैं। आज तकरीबन इस स्कीम के अंदर 350 बच्चियां, 350 बेटियां पूरे हिंदुस्तान से अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं। और उसी स्कीम की वजह से मैं बड़ा नहीं बोलूंगा, आज गवर्नर ऑफ हरियाणा, उन्होंने मुझे बकायदा बुलाकर सम्मानित किया, सीएम ऑफ हरियाणा, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो और भी जहां जहां पर भी पूरी स्टेट में मैं गया, तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.satya.edu.org। तो जब आप हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे, आपको वो सारी पिक्चर्स, सारे वीडियोस और मेरी जगह जगह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आएंगी। तो एक वो स्कॉलरशिप हमने उन बेटियों को दी जो फाइनेंशियली वीक है। अब मैं बच्चों की, बेटों की बात करता हूँ, बॉयज की बात करता हूँ। सिमिलरली स्टूडेंट्स हु आर वेरी पुअर, उनके लिए भी हमने कोई ना कोई स्कॉलरशिप का बेस्ड ऑन दी परसेंटेज हमने इंतजाम किया है कि कहीं ना कहीं उन बच्चों की भी हम हेल्प करें। तो बेटियों के लिए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसमें हमने हमारी बेटी हमारी शान जो स्कीम रखी है, उससे वो बेटियां फाइनेंशियली जो वीक है, दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट स्कीम। और बेटों के लिए जो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल अपनी पोजीशंस आप हमसे शेयर कर सकते हैं, जो इनकम टैक्स की रिटर्न्स वगैरह हैं या जो बैंक की स्टेटमेंट्स हैं वो शेयर करके, उसमें भी हम आपकी जो भी मैक्सिमम जो मदद कर सकते हैं वो जरूर हम बच्चों की मदद हम हमेशा करते हैं और करेंगे भी आगे। और अभी অভিজিৎ রয়ের সঙ্গে অভিজিতের কাছে চলে যাব, যেহেতু সে এখানকার কন্টিনেন্টাল আগরতলাতেই। তুমি কি করে এই সাতিয়া গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনের সঙ্গে কি করে এসছো, কবে থেকে এসছো? আমি 2014-তে ব্যাঙ্গালোর থেকে পাস আউট করে এসেছি এখানে। তো আসার পরে আমার তাদের সঙ্গে পরিচয় হলো, কারণ বিভিন্ন ইনস্টিটিউট আসে আগরতলা, তো তারা আমার সঙ্গে কথা বললো। তো আমিও টেকনিক্যাল ফিল্ড থেকে ছিলাম, তো তারা এসছে, ওনারা তারপর বলছে, এবং আমার সিবিও সাবমিট করা ছিল, তখন তারা বললো যে রিজিওনাল ম্যানেজারের দরকার টেকনিক্যাল ফিল্ড থেকে। তো তখন তাদের সঙ্গে আমি করলাম, তারা এখানে অফিস করলো তখন থেকে। এবং ত্রিপুরাতে প্রথম থেকেই যে সত্যিয়া কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজির আগমন, তখন থেকে অ্যাজ এ রিজিওনাল ম্যানেজার আমি এখানে কাজ করছি। ঠিক আছে। এবং যে বাচ্চারা এখানে আসছে, রিজিওনাল অফিসের মানে কি, তাদের কাজটাকে আমাদের অফিস থেকে স্টুডেন্টরা যখন ভর্তি হয়ে ওইখানে যায়, ঠিক আছে, আমরা দেখতে পাই প্রায় সময় গার্ডিয়ানরা ওনাকে খুঁজে, যার মাধ্যমে ভর্তি হয়। মানে এটা হয় পত্রিকাতে আমরা দেখি যে বিদ্যা ব্যবসা বলে একটা জিনিস চলে আসে প্রায় সময়। তো এটা একটা বিজনেসের জিনিস না, এটা একটা এডুকেশন। তো আমাদের এখানে কি হয়, স্টুডেন্টসরা যখন যায়, ওদের টিকিট করে দেওয়া, ওদেরকে ওইখানে পৌঁছানো, তাদের যারা গার্ডিয়ানরা যাবে তাদের কলেজে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া, স্টুডেন্টের রুমস করে দেওয়া। তারপর যারা স্টুডেন্টসরা আছে, যারা এসটি এসসি ওবিসি স্টুডেন্ট যারা হয়, যাদের স্কলারশিপের কাগজপত্র অনেক আছে, গার্ডিয়ান যারা পড়াশোনা জানেন না, তাদের হেল্প করে দেওয়া, কারো এডুকেশন লোনে হেল্প করে দেওয়া। এবং স্টুডেন্টসরা অনেকে ওইখানে যায়, তারা ঠিকঠাক মতো কলেজে যাচ্ছে কিনা, বা কারোর হয়তো পয়সা নেই, সে এই মাসে তার ফিস পেমেন্ট করতে পারছে না, তো তাকে দিয়ে একটা লেটার কলেজে প্রোভাইড করানো, ওই সমস্ত জিনিসগুলো যে দরকার, এটা হচ্ছে রিজিওনাল অফিসের কাজ। এবং সেই কাজটাই আমি গত 2 বছর ধরে করছি। এবং আমাদের যে ছাত্রছাত্রীরা আছে, গত বছর 46 জন ছাত্রছাত্রী আমাদের কলেজে পড়ছে ত্রিপুরা থেকে। হ্যাঁ, এবং আমি আরেকটা জিনিস শেয়ার করবো যে ত্রিপুরার যে আমাদের পলিটেকনিক কলেজগুলো আছে,
সেখান থেকে পলিটেকনিক করার পর আমাদের কলেজে ডিগ্রি করছে এরকম ছাত্রছাত্রী হচ্ছে 12 জন। ঠিক আছে, তারা ডিগ্রি করছে আমাদের কলেজে এবং তারা এতটাই স্যাটিসফাইড আমাদের কলেজ থেকে, তারা এখন আগরতলাতে আছে এবং তারা প্রত্যেক দিন আমার সঙ্গে 2 ঘন্টা করে আছে। তারপর তারা এসে অফিসে বসে তাদের এক্সপিরিয়েন্স করে এবং বাকি ছাত্রছাত্রীদের মানে যাদের ওদের যে জুনিয়র স্টুডেন্টস ওদেরকে ওরা বলে আমাদের কলেজে আসার জন্য। তো আমাদের কি হয়, এখন আমরা এরকম একটা পজিশনে আছি যে লেটারাল এন্ট্রি যে স্টুডেন্টসরা ওদেরকে আমরা ঠিকঠাক মতো সিটও দিতে পারছি না। মানে এত স্টুডেন্ট ওরা নিজেই ওদেরকে বলছে তোমরা এখানে যাও, এত মানে ওদের এতটাই ওরা খুশি প্যারেন্টসদেরকে নিয়ে। এবং আমি আরেকটা জিনিস শেয়ার করতে চাইছি যে আমাদের কলেজে ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাপার আমরা প্রায় সময় পত্রিকায় পড়ি কি যে স্টুডেন্টরা পয়সা দিতে পারেনি, তাদের ওইখানে পরীক্ষাতে বসতে দেওয়া হয়নি, ওদের খাওয়া দেওয়া হয়নি। আমাদের এখানে 4-5 জন ছাত্রছাত্রী এরকম আছে যারা এখনো ফিস পেমেন্ট করতে পারেনি, কিন্তু আমরা তবুও আমাদের এখানে রিকোয়ার্ড ভিত্তিতে আমাদের কলেজ তাদের পড়াশোনা করাচ্ছে, ওদের খাওয়া দাওয়াও চলছে এবং ওদেরকে টাইমের পর টাইম দিচ্ছে। কারণ এই ব্যাপারটা হচ্ছে এই জন্য, কারণ পয়সা দিয়ে আমাদের এডুকেশনটাকে পয়সা দিয়ে কম্পারিজন হয় না। ওই যে বিদ্যা ব্যবসাটা, ওই জিনিসটার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই এবং এই বিদ্যাটা অ্যাকচুয়ালি একটা ব্যবসার জিনিস না আমাদের কাছে, এটা আমি বলতে চাইছি। আর কিছু এখানকার রিজিওনাল অফিসের ঠিকানা, ফোন নম্বর? আমাদের রিজিওনাল অফিস হচ্ছে এসআর এডুকেশন, এমবিবি ক্লাবের গ্রাউন্ড ফ্লোর, শিবনগর, আগরতলাতে আমাদের অফিস রয়েছে। ফোন নম্বর আমাদের যে পত্রিকাতে আমরা প্রায় সময় দিয়ে দিই, বা আমাদের ওয়েবসাইট আছে কলেজের ওয়েবসাইট, ওইখানে গেলে ত্রিপুরা রিজিওনাল অফিসের অ্যাড্রেস ওরা পেয়ে যাবেন। বা কলেজের অফিস কখন খোলা থাকে? আমাদের অফিস 12 মাস খোলা থাকে, ইনক্লুডিং সানডে, সকাল 11টা থেকে সন্ধ্যা 5টা পর্যন্ত। সকাল 11টা থেকে সন্ধ্যা 5টা পর্যন্ত ইনক্লুডিং সানডে আপনি পেয়ে যাবেন এসআর ইনস্টিটিউট, এমবিবি কলেজ, এমবিবি ক্লাবের নিচতলাতে। এমবিবি ক্লাবের নিচতলাতে। তো এই তো গেল এই ব্যাপার। এবার চলে যাব উমেশ যে কাছে, উনি লেকচারার इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो अपनी एखानकार बाच्चादेर यानी कि आप यहाँ के बच्चों को? मैम 1.5 महीने तो हो गया है मुझे त्रिपुरा में। अच्छा, आप त्रिपुरा में रहते हैं? नहीं, मैं 1.5 महीने से हम जो है क्योंकि सर की गाइडेंस में, सर बीच बीच में आके गाइड करते हैं। कैरियर काउंसलिंग कमलपुर, तेलियामुरा, काफी जगह पे हमने काउंसलिंग कर लिया बच्चों को लेके। बच्चों की ग्राउंड लेवल पे रूट्स जो है उनकी, उनका एक्चुअली इंटरेस्ट क्या है, इंजीनियरिंग में क्या है, क्या लगता है आपने जो रिमोट एरिया पे विजिट किया, आपका एक्सपीरियंस क्या है? मेरा एक्सपीरियंस मैम बहुत अच्छा रहा। इवन काफी बच्चे जो अभी तक, पहले तो मैं गार्जियन के बात सुनना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे तो बाद में आते हैं। गार्जियन को पहले बहुत डाउट क्लियर होना चाहिए कि मैं अपने बच्चों को किस पे दूं, कहाँ पे डालूं। हाँ, मैक्सिमम देखा गया है कि बहुत सारी जगह पे कि गार्जियन दे आर नॉट क्लियर कॉन्सेप्शन अबाउट देयर, यानी कि बच्चे कहाँ जाए, कहाँ पर आए, किसको दे, कहाँ पे लगा उसके बच्चे को तो इंजीनियरिंग पे डाल दिया, चलो मैं भी उसको डाल दूं। तो इतने सारे कॉन्सेप्शन जो रिमोट प्लेसेस पे होते हैं, जो लोग उनको पता नहीं होता बहुत सारी चीजों के बारे में। तो वहां से आपकी एक्सपीरियंस क्या है? सर मैंने जो है वो ग्राउंड लेवल पे काम किया। मैंने जैसे बताया, आप पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, तो पेरेंट्स की बात अगर आप करें, सारी चीजों को कॉन्सेप्ट दिखाना पड़ता है। अब डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है तो उसका सरकारी कॉन्सेप्ट क्या है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद सरकारी जॉब कहाँ पे है। पेरेंट्स भी कुछ थोड़ा सा क्या होता है कि उनको भी, बहुत सारे पेरेंट्स के पास बहुत पैसे होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यानी कि कॉन्सेप्शन क्लियर नहीं होता। क्लियर करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं बाहर से पूरा काम करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे डिप्लोमा मैकेनिकल के बाद सर जॉब कहाँ पे है, मेरे से क्वेश्चन पूछे सर जॉब कहाँ पे है, मैं तुरंत उनको एक सरकारी एडवर्टाइजमेंट जैसे एसएससी का एडवर्टाइजमेंट निकला, ये देखो क्या मांगा है डिप्लोमा इन मैकेनिकल, कितनी % मांगी, 60%, कितनी वैकेंसी है, क्या पे स्केल है। अगर आपका बच्चा 3 साल पढ़ता है, 3 साल अच्छे से पढ़ाई करता है, तो डेफिनेटली ही विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब। और अगर प्राइवेट जॉब की बात करते हैं तो हमारे कॉलेज का तो लोकेशनल एडवांटेज एक ऐसा है कि जो कि फरीदाबाद, नोएडा, अच्छी अच्छी सिटीज जो कि प्रोडक्टिव सिटीज है, वहां से जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्रियल सिटीज से जुड़ा हुआ है। प्लस जो डे फॉर जॉब है, हमारे कॉलेज में यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है जो सर ने भी लॉन्च किया हुआ है, दैट इज डे फॉर जॉब। उसमें क्या होता है कि 2-4 दिन हम केवल पढ़ाई करवाते हैं और 2 दिन उस इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसको क्या करना है उसे नहीं पता, आपने जिससे मुझे बोला, अब उस मैकेनिकल में, मैं खुद मैकेनिकल का फैकल्टी हूं, तो मैंने क्लास में बच्चों को पढ़ाया जी कार्बोरेटर क्या होता है, व्हाट इज कार्बोरेटर। अब वो उसने
सारी चीजें थ्योरेटिकली तो पढ़ ली, वीडियोस भी देख ली, अब उसने प्रैक्टिकली क्या करा, उसको क्या पता कार्बोरेटर क्या होता है। अब जो बच्चे कम परसेंटेज वाले भी होते हैं, प्रैक्टिकली दिमाग तो अच्छा होता है बच्चों का। अब बच्चों ने बाइक को खोला, वहां कार्बोरेटर देखा, अच्छा ये फ्यूल इंजेक्टर, ये पंप है, ये इंजेक्टर। अब क्या हुआ, एग्जाम में जब क्वेश्चन आया 10 नंबर का, एक्सप्लेन कार्बोरेटर एंड इट्स एप्लीकेशन, दिमाग को तुरंत स्ट्राइक करता है, हाँ उस 2 दिन में मैंने प्रैक्टिकल क्लास में ये किया था। अच्छा, अब इसके अलावा हम कॉन्सेप्ट इसमें कंपटीशन भी जनरेट करते हैं। वो कैसे कि जो 2 दिन हम बच्चों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करवा रहे हैं, उस पर कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम एक प्राइज मनी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने इंजन मेंटलिंग और डिसमेंटलिंग का काम किया था, जिसमें हर बच्चे को हमने अलग अलग इंजन लाके दे दी और एक वहां पे बैठ के टाइम दिया गया, जो सबसे कम टाइम है, 3 लोग जो सबसे कम टाइम है, जो ग्रुप करेगा, खोलेगा उसको फिर बंद करेगा, हम उसको 5000 रुपीज किए, मतलब 5000 लास्ट प्राइज है, 10 and 15, यानी फर्स्ट वाले को 15,000, 10,000 और फिर 5,000 कंसेक्यूटिवली। तो उसको हम अवॉर्ड करते हैं, उससे क्या होता है, उसका एक मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है। राइट, ऐसे ये तो मैं मैकेनिकल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं डिप्लोमा से एसोसिएटेड हूँ, प्लस मैं बीटेक मैकेनिकल से भी एसोसिएटेड हूँ। राइट, ऐसा ही कंप्यूटर साइंस में हमारे पास इतने एक्सपर्ट्स हैं। हम जैसे हमारे मिस्टर तरुण बांगा जी हैं, वो एडोब के सीईओ रह चुके, रिटायर है वहां से, प्लस काफी सारे जो सर खुद है, सर का मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस है बीबीए वाले बंदों के लिए। तो हमारे पास जो क्या है, हमारी जो मैनेजमेंट की लाइन है, दैट इज क्वाइट एक्सपर्ट। राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो, मैकेनिकल की बात करो, चाहे सिविल की बात करो, तो इनमें हम क्या करते हैं, सर में प्रैक्टिकल एक्सपोजर डाल देते हैं। अब यहाँ पे जैसे जो आपके क्वेश्चन का जो आंसर है, आपने पूछा कि आपने यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस किया, तो मैं मोस्टली मेरे को 1.5 महीना यहाँ पे हो चुका है। राइट, तो 1.5 महीना हो चुका, तो मैंने बच्चों को सारी चीजें दिखाई। सिविल है तो हमारे कॉलेज में बच्चों ने क्या किया कि कैंटीन के बाहर एक इतनी बड़ी बैठने के लिए, बच्चों के बैठने के लिए एक बिल्डिंग डिजाइन करी, बैठने के लिए पेमेंट डिजाइन किया है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल वालों ने हमारे पूरे कॉलेज के बिजली का लोड कैलकुलेट किया है, कैसे उसको पावर कैसे कंज्यूम की जा सकती है, वो किया है। सीएससी वालों ने, एंड्रॉइड आजकल हर किसी के पास है, वो आपके भी पास होगा, मेरे पास भी है। राइट, अब उस एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डेवलप कैसे किया जा सकता है, मैं अपने नाम का एक एप्लीकेशन बना दूं, मैं फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन बनता कैसे है, मतलब मेरे कहने का मतलब है जो सारी चीजों का प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, वो 2 दिन में हर बच्चे को, हर ब्रांचेस को मिलता है। वो जो डायरेक्टली जो है वो सर की गाइडेंस में चल रहा है, और सर ने इस बार उसको लॉन्च भी किया है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस कि इसकी वजह से हमारे कॉलेज के जो बच्चे हैं होंडा में, जो कि हमारे कॉलेज से मुश्किल से 45 किलोमीटर दूर है। राइट, क्योंकि मैंने बताया हमारे कॉलेज का लोकेशनल एडवांटेज है, तो होंडा में हमारे बच्चे भी जॉब कर रहे हैं। और उसके बाद जेसीबी, आज त्रिपुरा में मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने बोला मैं पूरे त्रिपुरा में घूम चुका हूँ, इवन मैंने काफी सारी चीजें यहाँ पे अडॉप्ट भी कर लिया। राइट, तो मैंने देखा कि बच्चे को नहीं पता जेसीबी कौन बनाते हैं, जेसीबी का बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, उसको पता है जेसीबी क्या है, उसको पता नहीं है कि जेसीबी फरीदाबाद में बनती है, जो हमारे कॉलेज से 13 किलोमीटर आगे। अब वही चीज मैं बच्चों को समझाता हूँ। अब बच्चे समझते हैं क्या, यहां से आप डिप्लोमा कर लोगे, डिप्लोमा करने के बाद आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर कैसे मिलेगा। वही बच्चे जो गवर्नमेंट से आज डिप्लोमा कर रहे हैं, आज हमारे कॉलेज में बीटेक करने आ रहे हैं। राइट, तो एक एडवांटेज है हमारे यहाँ पे, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है। यही चीजें मैंने वहां पे पेरेंट्स को समझा, और मैं समझ भी आई, और समझ आई भी उसी का नतीजा है कि अभी 24 एडमिशन से अभी हम कर चुके हैं, डिप्लोमा मैकेनिकल प्लस बीटेक मैकेनिकल मिला के। राइट, तो अभी भी काफी सारे एडमिशन हमारे अभी एडमिशन चल रहे हैं, काउंसलिंग चल रही है। तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको कॉलेज में ही अवेलेबल रहूंगा। राइट, तो आप मुझसे और अभिजीत से, इवन सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो ये तो पहले ने आपके बता दिया कि सत्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को क्यों लोग चूज करें। जी जी, तो जैसे कि आपके पास सीसीटीवी का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, वार्डन का है, वो बता दिया, फिर फूडिंग लॉजिंग के वो पार्ट रह गए। जी, मैं क्योंकि कई सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी मैटर करते हैं, जैसे उमेश ने भी शेयर किया आपके साथ। इंपॉर्टेंट चीज जो हम टेक्निकल बातें कर रहे हैं, फूडिंग लॉजिंग में देखिए, जब पेट भरा हुआ और पेट में अन्न गया हुआ, तो इंसान पढ़ाई में भी ध्यान रखता है, और खाली पेट, कहते हैं खाली पेट भजन भी नहीं होता। तो वो उस चीज को, हम भी उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि बच्चे की फोकस अभी होगा जब उसने बच्चे ने अच्छा खाना खाया होगा। हमारा पूरी टीम इस चीज को इंश्योर करते हैं कि हर तरह का मिक्स खाना हो। मैं कल भी काउंसलिंग के दौरान बच्चों से बात कर रहा था, ये क्वेश्चन कल भी रेज हुआ, कुछ बच्चों ने पूछा कि सर खाना, तो मैंने उनसे भी बताया कि क्योंकि अब कश्मीर से भी बच्चा आ रहा है, अब बिहार से भी बच्चा आ रहा है, और तो और नेपाल से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बिहार और यूपी से भी, हर स्टेट से बच्चा वहां पढ़ने के लिए आता है। नाउ इट इज वेरी टफ टू गिव प्रोवाइड सेपरेट फूड फॉर एवरी स्टेट, बट एट द सेम टाइम यस वी कैन गेट देम अ फूड विच इज लाइक ऑफ कॉमन टेस्ट, विच कैन बी लाइक ऑफ लेस स्पाइसी, राइट, जिसको सब लोग एंजॉय कर सकें और अपने हिसाब से टेस्ट डेवलप करते हैं। दूसरा, मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा यहाँ पर भी,
क्योंकि हमारे बहुत सारी चीजें ये भी मैटर करती है, आज हमें अपने बच्चों को टफ बनाने की जरूरत है, क्योंकि जॉब्स आर नॉट कि मेरी पसंद के जॉब मेरे को मिल जाएगी और जहां पर जाऊंगा वहां पर मेरी पसंद का खाना भी मिलेगा। सपोज अब अपने मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अपनी जो प्लेसमेंट्स की जो उमेश शेयर करता है उसी से जुड़ती हुई एक बात आएगी, फिर मैं खाने से उस बात को लिंक करूंगा। अब अपने कॉलेज, क्योंकि हमारा कॉलेज दिल्ली एनसीआर में है, वहां पर अगर इंडिया की कहूंगा तो इंडिया की दैट इज द बेस्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन प्लेसमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 8 मेजर सिटीज है वहां पर जो जॉब प्रोवाइडर है पूरे हिंदुस्तान में। ऐसा एरिया जो विद इन द रेडियस ऑफ 20 किलोमीटर कहीं नहीं है। नोएडा, दिल्ली अपने देश की कैपिटल है, हर तरह के लोग वहां पर बसते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत, बहादुरगढ़, मुरथल, तो ये एरिया, सारा एरिया ऐसा है जहां पर एक से एक टॉप मल्टीनेशनल, एक से एक टॉप इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वहां पर हैं जो जॉब्स अवेलेबल हैं। जॉब के साथ साथ बच्चों को जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है वो कंपनीज भी वहां पर अवेलेबल है करने के लिए। अगली बात, उसकी प्लेसमेंट काफी अच्छी है और उनमें से बहुत सारी कंपनीज ऐसी जो मल्टीनेशनल कंपनी से मैं बात करता हूँ, इन्फोसिस की बात कर रहा हूँ, मैं टीसीएस की बात कर रहा हूँ, मैं एचसीएल की बात कर रहा हूँ। आजकल नोएडा के हर सेक्टर में टीसीएस, एचसीएल की कंपनी है वहां पर। अब जब वो एम्प्लॉयज को हमारे वहां से बच्चों को, फ्रेशर्स को हायर करते हैं, हायर करने के बाद उनको कई बार डिप्लॉय करते हैं बाहर, फॉरेन पोर्ट्स के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। कोई बच्चे, आज मैं एक प्राउडली शेयर करना चाहूंगा, हमारे बहुत से बच्चे फॉरेन कंट्रीज में भी, फॉरेन कंट्रीज में, फॉरेन कंपनीज में काम कर रहे हैं। अब यहां पर मैं खाने की बात को लिंक करूंगा। अब मेरा बच्चा जो यहां का बच्चा है, जब वो यूएस में पोस्ट हो जाएगा तब खाना कहां से आएगा? मेरा नॉर्थ ईस्ट का खाना नहीं मिलेगा, कश्मीर वाला नहीं मिलेगा, वो तो छोड़ो दिल्ली वाला खाना भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे में उसको टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट को डेवलप करने की हमें अपने बच्चों को आदत डालनी पड़ती है। तो मैं अपने बच्चों को जो तैयार करता हूं, इट्स नॉट ओनली मैं तैयार कर रहा हूं इंजीनियरिंग के अंदर, मैं उनको तैयार कर रहा हूं इस तरह के चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी। कल वो जब वो यूएस जाएंगे, कल जब वो जापान जाएंगे, आज मेरे स्टूडेंट्स जापान में काम कर रहे हैं, आज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं। सो ऑस्ट्रेलिया के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से, फूडिंग हैबिट के हिसाब से क्या मेरा स्टूडेंट तैयार है? तो वो सारी चीजों के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को यहीं से तैयार करता हूं ताकि वो किसी भी इस तरह के जो छोटे छोटे चैलेंजेस हैं उनको भी फेस कर, ओवरकम कर सके। जी, तो इस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए खाने के अरेंजमेंट्स भी ऐसे किए जाते हैं ताकि कॉमन तरह का फूड हो, हर बच्चा उसको एंजॉय करे, हर बच्चा उसके टेस्ट को डेवलप करे। ধন্যবাদ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। তো যে কথাটা উনি বললেন এতক্ষণ ধরে, যে প্রথমেই তো আপনাকে যাচাই করতে হবে যে কলেজের অ্যাপ্রুভেল আছে কিনা, এবং সেক্ষেত্রে তাদের এখানকার যে রিজিয়নাল কোঅর্ডিনেটর আছে সে অফিসে গিয়ে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন, তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন এবং বিস্তারিত কলেজ সম্পর্কে আপনি জানতে পারেন। সে তথ্যগুলো আপনি নেট থেকে কালেক্ট করতে পারেন, আর ওখানে যারা পড়াশোনা করছে তাদের ফিডব্যাক নিতে পারেন। সন্তানের ভবিষ্যৎ সব বাবা মায়ের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক। সব বাবা মাই চায় যে তার সন্তান আগামী দিনে ভালো থাকুক, সুন্দর থাকুক। তো সেই ক্ষেত্রে সন্তানের যে জায়গাটা রয়েছে সেটা এমন একটা সফট জায়গা, সেখানে সংখ্যা একটা, আমার বাচ্চা যতই ভালো থাকুক না কেন সেখানে সংখ্যা একটা থেকেই যায়। তো সংখ্যা কেন, সেই উদ্বিগ্নতা কেন, সেই এংজাইটি কেন, সেই স্ট্রেস আপনি নেবেন কেন? তার চেয়ে বেটার আপনি খোঁজ করুন, আপনি জানুন আপনার মতো করে আপনার বাচ্চা সেখানে সুরক্ষিত কিনা, আপনার টাকা, আপনার ইনভেস্টমেন্ট সেখানে সুরক্ষিত কিনা। তো সেই দায়িত্বটা নিতে হবে প্যারেন্টসদের, অভিভাবক অভিভাবিকাদের। সে জায়গায় আপনি আপনার বিচক্ষণতা, নিজের কতটুকু পারদর্শী, সেই জায়গায় আপনি আপনার আজকের চিন্তাই নির্ধারণ করবে ভবিষ্যতে আপনার বাচ্চাটি কি হবে, তার ফিউচার কোন গতিপথে যাবে। তো আজকে যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। অভিজিৎ, অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। থ্যাংক ইউ উমেশ জি, আপকো বহুত বহুত থ্যাংক ইউ। তো সবাইকে ধন্যবাদ জানানো হয়ে গেল। এবার আপনাদের পালা, আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এটাই তো